फर्स्ट क्वेश्चन, अब तक जो भी हुआ है, हैज एवरीवन प्रैक्टिस, हैज एवरीवन प्रैक्टिस, यस नो, यस नो, यस नो, हैज एवरीवन प्रैक्टिस, जो भी हुआ है, ओके, यस, यस, कूल, एनीवन एल्स, आर वी प्रैक्टिसिंग और मतलब प्रैक्टिस करो if we are not practicing. So let's quickly practice what we have learned in lecture 3, and that is again print function हमने देखा, input function हमने देखा, okay. तो print functions में हमने क्या क्या देखा, एक end parameter देखा, उसके अंदर you can add like given a comma, you can add end parameter, और end में whatever you would like to add you can add, like this extensions usually people add, or extensions again, okay. Then we saw separate, so what it requires is it requires two strings, okay. You can see comma separated two strings, and you can use sep, so it will basically separate those strings, okay. We have seen India and Pakistan separated by what, borders only, so like this, okay. Then we have seen writing print statement, ways of writing print statement. सबसे पहले we wrote like this, print a comma b, okay. Let me just quickly see if we are getting the voice in our recorded recordings. Not received the link. पहले भी like wrote like this. Okay, आवाज आ रही है. Alright. Again, going ahead. कैमरा बंद कर देता. देखो, उसके बाद हमने देखा कि we write the same thing, like a and b को हमें लिखना था, but we added some text. So this was like value of a, then comma a, value of b, comma b, and we just add slash n here inside a string. What happened, that came to the next line, and this a and b's values came here, and these are actually a string, okay. Then similar thing we wrote like this, similar thing we wrote like this, similar thing we wrote like this, but here we use this dot format, okay, dot format. So when you use dot format, you need to specify the values inside a string, okay. when you use f string, तो f को बस string के बाहर डाल दो, इन चीजों को curly braces के अंदर डाल दो. You don't need a comma, you don't need a dot, you need nothing, okay. So here is another example, string. In a curly braces, the variables are inside a curly braces, and you use just f string here, okay. Then we saw f r string. R क्या करेगा, nullify करेगा effects of slash n, effect of slash p if it was there, and f क्या करेगा, it will add extra value, okay. Here it add extra value, and r r particularly nullify the effect of n, okay. Then we saw input function, okay. Interestingly, input function has been really interesting. So हमने क्या, usually what we do, we specify inputs like this, मतलब these are inputs to this string particularly, right. So what we did is we wrote like this directly. Then we also saw we can take a input from user, okay. So for that matter, we have to specify a variable, say use a function called input, which is a Python inbuilt function, and you can just add a text here for a user set. User को कैसे text से दिखना चाहिए, for that you add this text, and for similar for this, and we did it, okay, with the print statement again. Then we did it using integers, because everything which comes from this input, Python considers as what, string. Then what we did is we try to convert it into a string, okay. Sorry, not a string, integer. Then we also try to convert that into a float, and I think these were something that you did it, okay. These are some examples that you did it. So what are these? I was practicing something. Anyways, so let me just open a new notebook,
and let's start with the lecture 4. Okay, let's start with lecture 4. So आज हम सीखेंगे, today we are going to learn, क्या सीखना है आज? lecture 4. Okay, let's learn integers and operators. Okay, integers and operators. Let's try to cover these two things as uh, okay. सबसे पहले integers integers के अलावा we could say, okay, let it be, यहाँ पर क्या होता है, we can say numeric data type. ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप. सबसे पहले हम न्यूमेरिक डेटा टाइप को पढ़ते हैं. ओके, सबसे पहले लेट्स ट्राई टू लर्न न्यूमेरिक डेटा टाइप. ओके, न्यूमेरिक क्या है? तो अभी तक हमने टेक्स्ट डेटा टाइप सीखा. टेक्स्ट डेटा टाइप क्या था? टेक्स्ट डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग था, राइट? इट वाज अ स्ट्रिंग जिसमें वी मोस्टली सॉ सारे ही टेक्स्ट. ओके, आई डिड गिव यू सारे टेक्स्ट मीनिंग जो भी स्ट्रिंग के अंदर होते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट. So anything which like this is a array. Array. So these are some textual data type, right? इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये string आ जाएगा. But now we want to know what are the numeric data type. ठीक है, what are the numeric data type? जो हमने उसको कुछ glimpse I have given. ठीक है, what are the numeric data type? First है integer. ठीक है, integer कैसे दिखते हैं और क्या है, हमने एक स्लाइड उसको पढ़ा भी था. ओके, तो सबसे पहले इंटीजर को थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करते हैं. हाँ, मतलब वन लेवल अहेड. ठीक है, वन लेवल अहेड. तो फर्स्ट थिंग, so integers are whole numbers, right? ठीक है, integers are whole number that can be positive or negative. ठीक है, integers are whole numbers. ये whole number होते हैं. Those can be positive also, those can be negative also. ठीक है, and they can be ranging from negative infinity to positive infinity. ठीक है, होल नंबर्स हमें समझ में आ गया कि, सॉरी, होल नंबर्स नहीं, इंटीजर्स. क्या हमें इंटीजर्स समझ में आ गया? So integers are whole numbers that can be positive, that can be negative. They range from negative infinity to positive infinity. तो इसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ. इट कैन बी लाइक दिस, -11, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, like this, and like this, ये like this also. ठीक है, ये हो गए आपके इंटीजर्स. देन द नेक्स्ट वर फ्लोट. ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप वाज फ्लोट. So these are numbers in a decimal format. Okay, in a decimal format. Decimal format में ये numbers हो सकते हैं. Again, this can be these are positive and negative also, and can range from positive infinity to negative infinity. तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ. Okay. These are just इनका example similar रहेंगे, बस कुछ ऐसे example ले लो. पॉइंट 9 -909 या प्लस में ले लो 4, 5 पॉइंट. यहाँ पर ये स्पेल आउट हो गया, यहाँ पर मैं डॉट डाल देता हूँ. एनी नंबर्स विच आर डेसिमल. ठीक है, एनी नंबर्स विच आर डेसिमल. तो ये हो जाएंगे आपके फ्लोट. ठीक है, ये आपके फ्लोट हो जाएंगे. एंड द नेक्स्ट डेटा टाइप इज आर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप. तो हमने इसको भी स्लाइटली देखा था. So complex are involves, this basically involves real and imaginary part. Okay, complex data type involves real and
इमेजिनरी पार्ट। ओके, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इनका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। इट्स लाइक 5 प्लस 6j। ओके, 5 प्लस 6j। तो 5 यहाँ पर क्या है? 5 यहाँ पर है, 5 is a real number. Okay, 5 is a real number, and uh, and यहाँ पर 6 is 6 is 6j actually. 6j is an imaginary number. ठीक है, 6j is an imaginary number. तो ये अभी हमें एक मतलब कॉन्सेप्चुअल आइडिया आ चुका है कि इंटीजर जिस तरीके से दिखते हैं, दे कैन रेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव इंफिनिटी, डेसिमल और फ्लोट्स लुक लाइक दिस। ओके, उस उनके अंदर डेसिमल पॉइंट जरूर रहेगा, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर लुक्स लाइक दिस। ओके, जिनके अंदर देयर विल बी वन रियल नंबर, देयर विल बी वन इमेजिनरी नंबर। ओके, सो दीज आर योर नोट्स। तो हमने और एक फंक्शन भी देखा था yesterday, दैट वाज टाइप फंक्शन। ठीक है, टाइप फंक्शन जिनसे हम पता कर सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, लेट्स से दिस इज -11, so it will come to integer है, right, because this is a whole number। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, टाइप ऑफ 4 प्लस 7j, so it should come what, complex, कुछ इस तरीके से। और एक आई थिंक लेट्स गो विद द एग्जांपल ऑफ फ्लोट। ठीक है, so let's say टाइप ऑफ 0.003, देखते हैं व्हाट वी गेट, फ्लोट। ठीक है, so these are three examples using type function. Like this type function is used to know what is the type of your data type. Okay, what is the type of your data type, of your data, basically of your data। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने देखी। नाउ वी सॉल्व। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर को, मतलब वी विल बी सेइंग दैट व्हाट इज दिस नंबर, आई हैव नॉट सीन दिस नंबर। इसके पहले मैंने कभी यूज नहीं किया। ठीक है, तो ये वैसे ज्यादा मतलब यूज होता नहीं है, बट इफ यू वांट टू नो कि ये एग्जैक्टली नंबर्स क्या है, इसके अंदर एग्जैक्ट नंबर्स क्या है, यू कैन यूज दिस एब्स फंक्शन। ठीक है, एब्स फंक्शन एंड एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा आपको। ठीक है, so if you want to know, let's say 3 plus 4j, 3 plus 4j का वैल्यू क्या है, अगर आपको पता करना है, you just have to add it in the curly braces and you just have to say abs। ठीक है, abs, तो इसका वैल्यू आपको पता चल गया, तो दिस विल बी 5। ओके, दिस विल बी 5। तो लाइक दिस। और इसी के साथ और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 4 प्लस let's say 3j। ठीक है, 3j, it will again adjust 5, and the last example let's try and understand is abs of 5 plus, sorry, 12 plus 5j, so this will come around 13 like this. So if you want to know what is the value of this, absolute value of this, you know, complex number, so you can use this abs function। abs function, mostly in the industry also people don't really use this, like I have not really used this abs function or even worked on this complex number, but it is good to know, right? But it is good to know। Okay, until here is everything clear, right? Until here is everything clear, yes, no, until here is everything clear, until here is everything clear, yes, yes। Okay, right, everyone else participate, guys, I hope you are there। कोई सो नहीं रहा है, खाना हो चुका है सबका, and no one is sleeping। Okay, be attentive, be responsive in the class। All right, next let's try and understand,
let's try and understand one more. तो यहाँ पर हम conversions conversions of न्यूमेरिक डेटा टाइप्स देखेंगे. ठीक है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स देखेंगे. अब तक आपने देखा होगा कन्वर्जेंस ऑफ कास्ट. ठीक है, कोई हिंदू से क्रिश्चियन हो रहा है. ठीक है, कोई हिंदू से क्रिश्चियन हो रहा है, कोई क्रिश्चियन का गलत ही स्पेलिंग होता है, या कोई कौन से कास्ट से कोई दूसरे कास्ट में चले जा रहा है फॉर एनी सम पर्टिकुलर बेनिफिट. बट here we are talking about numbers, numeric data. Okay, here we are talking about numeric data. So we will convert the different type of data types into other type of data types. Okay, other type of data. For example, अगर ये एक जैसे मेरा परसेंटेज है, किसी अटेंडेंस परसेंटेज है, I want to tell to someone else what is my percentage, attendance percentage in an integer. You will not take in 97 point something. You will just convert into the float, right? This is a float. This is a float. And if you want to make an integer, you can simply say 97. कैसे? Int of 97.99. तो इस नंबर को आपको ब्रेसेस में डालना है, उसके सामने इंटीजर. बेसिकली जिसको भी जो भी नंबर फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है, यू कैन कन्वर्ट इट यूजिंग उसके सामने उसका लाइक ये डाल दो, टाइप डाल दो. जैसे अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है किसको, 122. ठीक है, इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस 122 इज अ इंटीजर नंबर, राइट? 122 is an integer number. So if I want to change this 122 into a float, I will do like this float. तो ये float बन जाएगा 122.0. Okay, 122.0. One more thing I can say, you cannot convert complex number into float or int. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मीनिंग तो नंबर्स जो कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे 3+4. फिर इनको आप ये क्रॉस है, ठीक है, अभी के लिए समझ लो, इंट और फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, यू कैन नॉट कन्वर्ट लाइक दिस दीज थिंग्स. ठीक है, सो लेट्स ट्राई दीज एग्जांपल्स जिसमें नहीं कर सकते हैं. जैसे मैंने इंटीजर कह दिया 3+4. देखो ये मुझे एरर दे देगा. ओके, दिस विल गिव मी एन एरर. और इफ आई से फ्लोट आल्सो, इसको फ्लोट भी कर दूं तो भी मुझे ये एरर दे देगा. ठीक है, तो भी मुझे ये एरर दे देगा. सो यू कैन नॉट रियली कन्वर्ट दीज थिंग्स इनटू फ्लोट और इंटीजर. बट स्टोरी में यहाँ पर ट्विस्ट है गाइस. क्या ट्विस्ट है? यू कैन कन्वर्ट एनी नंबर इनटू, यू कैन convert any float or into a complex number. Okay, into a complex number. Let's understand. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था complex of 2. अगर मैं ऐसे कर दूँ so it will get converted into 2 plus 0j. ठीक है, now this is a complex number. Can I give you one more example? Complex of let's say 3.4. So it will be like 3.4 plus 0j. So this can be done. Okay, this can be done in Python. So we just talked about float, integer and complex. But क्या string, there is a question, can string get converted into float और int? ठीक है, दिस इज ये एक सवाल है. दिस इज अ क्वेश्चन, कैन वी डू इट? तो स्ट्रिंग कैसे रहेगी? फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रिंग. ठीक है, दिस इज दिस इज अ स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग है, एनीथिंग व्हिच इज इनसाइड सिंगल ब्रेसेस, डबल ब्रेसेस आर स्ट्रिंग. अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करूं, क्या ये हो जाएगा? यस, ये हो जाएगा. ठीक है, यस, दिस कैन बी डन.
The question: how does system define value as 5j is an imaginary number? तो सिस्टम नहीं डिफाइन करता है. इट इज लाइक, अगर मैं आपको ऐसे, हम इसको बचपन में पढ़े नहीं है. आई एम नॉट श्योर. गिव मी एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, अगर कुछ ऐसे भी आप पूछोगे ना, तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. जैसे 2 + 3i. ठीक है, so 3i इज ए इमेजिनरी पार्ट. ओके, 3i यहाँ पर देख लो, और यहाँ पर आई ही बोला गया है, बट पाइथन में भी राइट जे. यहाँ पर भी देखो 1 + j या -1³ -3i. सो दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो हमने जब बचपन में मैथ्स पढ़ा था, तो ऐसे पकड़ लो. आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज देयर इन योर सिलेबस, बट इट वाज देयर. ठीक है, तो ये रियल पार्ट है. क्या है? ए इज अ रियल पार्ट फर्स्ट प्लस ib. दिस आई इज एन इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, आई इज एन इमेजिनरी पार्ट. So like this, it was there in our syllabus already. So Python कुछ अलग से नहीं बना रहा है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, it is not something we are making by ourselves. हाँ, इसको अभी 2 को इमेजिनरी में कैसे कन्वर्ट किया? 2 + 0 जो 0 into anything is what? 0, मीनिंग एक्चुअल वैल्यू तो 2 ही रहेगा. ठीक है, अगेन 3.4 0 जो 0 into anything is what? 0. 3.4 will be our answer. तो ये कुछ इस तरीके से कर पा रहा है. ओके, ये कुछ इस तरीके से कर पा रहा है. आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट. क्लियर्स? नो क्लियर? यस, नो, या क्लियर, नॉट क्लियर. सी मीनिंग. ओके, ये ऑलरेडी वहां पर था. कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से है, रियल नंबर, इमेज नंबर. ठीक है, दीज थिंग्स वर ऑलरेडी देयर. Now we are just trying to learn in Python. Okay. Coming back to our question, can string get converted into float or integer? Okay. Can string get converted into float or integer? Yes, it can. Right. So this is a integer of 0. Like, not 0.1001. So we just change it to a what? Integer. Now this looks like an integer. Similarly, float का भी हो सकता है. जैसे मैंने ये डबल कोट्स में ले लिया 0.9. ठीक है, मैंने ले लिया 0.9. इफ आई रन दिस, should get 9. so if you want to check the type, you can check like this. अगर मैं इसको num equals to ऐसे कर दूं और print num लिख दूं और इसके बाद टाइप ऑफ num चेक करूं, तो मुझे आ जाएगा 101. प्रिंट 101 1001 एंड इसका टाइप आ जाएगा इंटीजर. ठीक है, इसका टाइप, हाँ इसका टाइप आ जाएगा इंटीजर. ओके, इसका टाइप आ जाएगा इंटीजर. तो आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर गाइस. ठीक है, आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर. तो इस इतना ही है न्यूमेरिक डेटा टाइप में. ओके, दैट इज ऑल इन द न्यूमेरिक डेटा टाइप. एनी क्वेश्चंस? इफ दिस इज क्लियर राइट, तो मैं इसको एक क्वेश्चन लूंगा. आई विल गिव यू सम क्वेश्चन इसके ऊपर. ठीक है, ठीक है. तो यू जस्ट हैव टू से, चलो क्वेश्चन देखते देखते बात करते हैं. ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा बताओ मुझे. इंट ऑफ 4.5.90. इसका आंसर क्या रहेगा? एवरीवन क्विकली. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, फ्लोट को मैं इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ठीक है, इसका इसका आंसर क्या रहेगा? क्विकली. 46? नो, इसका आंसर 45 रहेगा. ठीक है, इफ आई डू दिस, वो राउंड नंबर नहीं कर रहा है. ठीक है, बट यू गॉट इट कि आप व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट ए फ्लोट इनटू एन इंटीजर. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, बाकी लोग भी बताओ. ठीक है, इंट ऑफ 3 +
C+9J। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? Quickly, everyone will get 10 seconds. 9, 8, error. So this is right. Okay. Now, if I say float of 23.90, what will be the answer? What will be the answer? You again get 10 seconds. 10, 9, 8 seconds. 23.90, 23.90. Right, good. And you do this. Now you will say integer of 3490. इसका आंसर क्या आएगा guys? Quickly, quickly. You get 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1, and let's go. So इसका आंसर रहेगा, अरे बहुत लगन दिया. So this is right. Okay, this is right. All right. So I think this one is clear. So now let's move on to another major topic, that is operators. ठीक है, ऑपरेटर. जो कोई स्टॉक मार्केट खेलता है उनको पता रहेगा ऑपरेटर्स क्या है. बट in the coding language, operators are different. Okay, in the coding language, operators are different. So there are few types. सबसे पहला टाइप है arithmetic operators. Okay, सबसे पहला टाइप है arithmetic operators. इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा टेक्स्ट में. सबसे पहला टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. इसमें कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? तो एक ऑपरेटर रहेगा एडिशन के लिए. ठीक है, एडिशन के लिए क्या ऑपरेटर रहेगा? प्लस. राइट. एक रहेगा सब, आ गया भाई, सब्सट्रैक्शन के लिए एक्सेप्ट. ठीक है, ये क्या है? इसको एक रहेगा एडिशन के लिए जो रहेगा प्लस. एक रहेगा सब्सट्रैक्शन के लिए जो रहेगा माइनस. एक रहेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए which is asterisk. Okay, one will be for division, one will be for floor division, one will be for exponent के लो या फिर you can also say power. ठीक है, power. And this is for modulus. Okay, modulus के लो या इसके लिए you can also say remainder. Okay, remainder. So let's try and learn. ठीक है, हर एक के एग्जांपल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. अभी हम टू सेंस में जो हमने आई थिंक 2 days पहले लिया रहेगा कि पाइथन ये कैलकुलेटर की तरह वर्क करता है. हाउ इट वर्क्स लाइक अ कैलकुलेटर. ठीक है, सो लेट्स सी कैसे करता है. तो सबसे पहले एग्जांपल है एडिशन का. ठीक है, एडिशन का एग्जांपल लेते हैं. तो एडिशन का एग्जांपल लाइक दिस 5 + 5, तो हमें 10 मिल जाएगा. ओके, 5 + 5 हमें 10 मिल जाएगा. फिर वी कैन से फॉर सब्सट्रैक्शन 5 - 5 हमें 0 मिल जाएगा. राइट, 5 - 5 हमें 0 मिल जाएगा. लेट्स सी फॉर मल्टीप्लिकेशन. ओके, 5 × 5 हमें 25 मिल जाना चाहिए. ओके, 5 × 5 हमें 25 मिलना चाहिए. डिवीजन विल बी लाइक दिस. 5/5 हमें 1 मिलना चाहिए. ओके, 1 मिलना चाहिए. Then we can say next is floor division. Floor division and exponential, floor division and मॉड्यूलस साथ में सीखते हैं. ठीक है, फ्लोर डिवीजन एंड मॉड्यूलस साथ में सीखते हैं. तो ये 5/5. ओके, ठीक है, एंड ये रहेगा 5 %. 5. तो इसको अलग से ही सीखते हैं. ठीक है, ठीक है. सो 5 ये आएगा 1
एंड ये आएगा 0। कैसे? तो मोस्टली 5 डिवाइड बाय 5, तो ये डिवाइड ही पकड़ना स्टार्टिंग में, ठीक है। इसमें भी डिवीजन होता है, इसमें भी डिवीजन होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। 24 डिवाइड बाय 2 या 23 कर देता हूँ। रन दिस। तो अगर मैं 23 को 2 से डिवाइड करूंगा तो जो डेसिमल के ये साइड पे रहेगा, सॉरी गाइस, क्या ये कुछ एग्जांपल ही चेंज करते हैं हमने, ठीक है, लाइक दिस। So let me run this, let me run this. So always 20, जिसको भी मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, जिसको भी मैं डिवाइड करूंगा 20, ठीक है। अगर मैं इस डिवाइड करूंगा किसी भी नंबर को, जो लेफ्ट पार्ट रहेगा दैट विल बी माय फ्लोर डिवीजन, ठीक है, दैट विल बी माय फ्लोर डिवीजन। एंड इन माय माइंड अभी मैं क्या करूंगा, 23 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो इट विल बी लाइक 23 डिवाइड बाय 2, लाइक 20, लाइक 11 मेरे माइंड में रहेगा सबसे पहले, और जो रिमाइंडर रहेगा, ठीक है, मतलब 22 को डिवाइड करने के बाद 11 आ जाएगा, राइट। 22 इंटू 11 इज 2 इंटू 11 इज 22, और जो बचेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो दैट विल बी अ रिमाइंडर, दैट विल बी अ रिमाइंडर। जस्ट वाइट बोर्ड, यहाँ पर भी होता है, जस्ट लेट मी चेक। अभी के लिए ये देख लेते। सो लेट इट, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 23 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे, सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। 11 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो मैं बोलूंगा 2 1 जा 2, 2 3, 2 2 जा 4, जैसे 2 5 जा क्या आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 5 जा मेरा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ओके 1। So this is my remainder and this is my floor division, which this 5, this 5 will be my floor division, okay, like this. अब अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो 2 11 are 22, ठीक है। So 11 is my floor division and जो एक बचेगा इसके अंदर, तो that will be my remainder, okay, that will be my remainder. So this is a mathematical term. I hope this is already clear in our, जब हम बचपन में पढ़ रहे थे। तो इज इट क्लियर? यहाँ पर कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है तो कंफ्यूज डाल दो, थोड़ा सा लिटिल बिट समझना नहीं, कुछ इस तरीके से डाल दो, ठीक है। क्विकली क्विकली, एनीवन कंफ्यूज्ड? नो? क्लियर? ओके, सो नाउ गोइंग अहेड, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट क्या होता है? इट इज अ पावर, राइट, टू दी पावर, इसकी हम ऐसे कंसिडर करते हैं, टू दी पावर। So to the power meaning 5 to the power 2 is 25. Okay, 5 to the power 3 is 125. मतलब ये क्यूब रूट देगा, स्क्वायर रूट देगा, राइट। सॉरी। तो ये एक्सपोनेंशियल, मतलब ये एक्सपोनेंट 5 का 2 इज एक्सपोनेंट, ओके, 5 का 2 इज एक्सपोनेंट, ऑलराइट। तो ये चीजें समझ में आ रही है किसी को? ये चीजें समझ में आ रही है किसी को? और एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका, आप लेट्स से 121 का अगर 0.5 कर दो तो ये इसका क्यूब रूट देगा, सॉरी रूट देगा। 11 का स्क्वायर 121 है, तो दैट विल, इट विल गिव यू अ रूट, ओके, इट विल गिव यू अ रूट। सो इट इज
लाइक दिस ऑल्सो, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 121 टू दी पावर 1/2। तो ये भी कुछ इस तरीके से सिमिलर है। 1 सेकेंड देना गाइस। ओके, बैक नाउ। तो क्यूब रूट लाइक स्क्वायर रूट या क्यूब रूट भी कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे वन मोर एग्जांपल, लाइक 125 का क्यूब रूट है अच्छा 5 रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा। तो इट इज लाइक इट इज, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ऑलराइट, सो नाउ अगर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सारे के सारे क्लियर है, have you got this? If you have got this, type GT in the comments, and if you have got this, question and answer शुरू होंगे guys, ठीक है। मेक श्योर इफ यू हैव अंडर, अगर कोई डाउट है तो आप बोलिए, ठीक है। इफ यू हैव अ डाउट, लेट्स टॉक। इफ दिस इज क्लियर, if you have got this, type GT in the comments. If you have doubt, type GT in the comments. Anyone? इसको समझा नहीं क्या? समझा है या नहीं? अरे यार, आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है बात करने। ओके, वन ओनली, अदर्स, अदर्स स्टूडेंट्स, इफ यू वांट रिस्पॉन्स आई वोंट गेट कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। यू वांट रिस्पॉन्स आई वोंट गेट कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। टू ओनली। So now, since you have got this, so give me one example of floor division. Floor division का एक example दो। Give me an example of floor division. Floor division कैसे करते हैं? One question only. If you have understood this, give me an example of floor division. Everyone get 10 seconds enough. Floor division का example. I think the time is up. 25.5. Okay, this is right. This is right. Right. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गोइंग एट। मतलब ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, सो ट्राई टू बी अटेंटिव, ठीक है। लेट्स ट्राई टू बी अटेंटिव। सो नाउ, सो नाउ देयर आर सम असाइनमेंट। नेक्स्ट ऑपरेटर्स, हमने सबसे पहले क्या देखा? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, सो फर्स्ट इज दिस, अच्छा सारी याद है। सो दीज आर सम assignment operators. So this is equals to, this is equals plus and equals to, minus and equals to, multiplication and equals to, division and equals to, floor division and equals to, power and division, flower and equals to, and ampersand and equals to. Okay, ampersand and equals to. So these are some examples of these are some examples of assignment operators. Okay, these are some examples of assignment operators. So let's try and look at these operators with the examples. ठीक है, with the examples. So सबसे पहले we use this plus, sorry, equals to assign something. इसको assignment भी क्यों कहते हैं? हर एक में equals to है, देखो, ठीक है, because it is used for assigning value to something. जैसे हम
ए इक्वल्स टू ट्रिपल वन अगर मैं बोल दूँ इक्वल्स टू, मैंने ए को आई हैव असाइन ट्रिपल वन एज अ वैल्यू टू ए, ठीक है। If I ask for this, I should get this way. Okay, I should get this way. Meaning मैंने a को 10 वैल्यू दे दिया. If I assign 10 value, so this is why equals to is called as assignment operator. And anything which is these are some, let's say, derivatives of a equals to. Okay, so देखते हैं. Let's say you have a equals to 10. let's say आप a के अंदर ही 10 ऐड कर रहे हो. ओके, यू आर एडिंग. अभी ए का वैल्यू जो भी रहेगा, इसका वैल्यू जो भी रहेगा वो ए का वैल्यू रहेगा, राइट. ए के अंदर ए का वैल्यू क्या था सबसे पहले? 10 था. नाउ यू आर सेइंग 10 प्लस 10. ओके, यू आर सेइंग 10 प्लस 10. एंड इफ आई आस्क फॉर दिस आई शुड गेट 20. ओके, इफ आई आस्क फॉर इट आई शुड गेट 20. हमने क्या किया? इक्वल्स टू एंड प्लस यूज किया. इक्वल्स टू एंड प्लस यूज किया. मैं इसको सिमिलर चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस इक्वल्स टू 10. ठीक है, प्लस इक्वल्स टू 10. सो इफ आई रन दिस, अभी क्या होगा? ए का वैल्यू 20 था. 20 प्लस 10 विल बी 30. अगर मैं फिर से रन करूँ 30, अभी ए का वैल्यू कितना है? 30. 30 प्लस 10 विल बी 40. इफ आई रन दिस अगेन 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन. ठीक है, अगर मैं फिर से ए का वैल्यू रन कर दूँ 10, तो यहाँ पर 20 आ जाना चाहिए. ठीक है, 10 प्लस 10 20. फिर इफ आई रन दिस 20 प्लस 10 50. I run again this 10 का, अभी a का वैल्यू 10 है. 10 प्लस 10 इज 20. इसी को हम कहते हैं इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट, इसी को हम कहते हैं इंक्रीमेंट, जो कॉर्पोरेट्स में नहीं मिलती. ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेशन. ऑपरेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंट ऑपरेशन. सिमिलर ऑपरेशन कैसे रहेगा? माइनस के लिए भी रहेगा. लेट्स से b इक्वल्स टू, सबसे पहले तो b डिफाइन करना होगा. b इक्वल्स टू b माइनस 5. लेकिन b क्या है? b इक्वल्स टू 10 है और 100 है. ठीक है, b इक्वल्स टू 100. सो b माइनस 5. I run this, I should get 95, राइट. 100 में से 5 चले गए, 95 हो गया. और वो उसी सेम ऑपरेटर में, उसी सेम ऑब्जेक्ट में हमने वो वैल्यू स्टोर कर दी. ओके, अभी b का, अभी का करंट का वैल्यू है 95. 95 माइनस 5 90, 85, 80. ओके, इससे अगर b का वैल्यू 100 कर दूं, मैं रन कर दूं, तो ये 95 आ जाएगा. इसी को मैं सिमिलरली ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इक्वल्स टू 5 एंड b. ठीक है, अगर अभी b का वैल्यू 100 है, अगर अभी b का वैल्यू 100 है, 100 माइनस 5 95, 90 एंड सो ऑन. ठीक है, 90 एंड सो ऑन. इसी को हम कहते हैं डिक्रीमेंट. ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेशन. ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेशन. ओके, एंड आई थिंक सिमिलरली हम सारे ही चीज़ों के लिए कर सकते हैं, ये सारे ही चीज़ों के लिए. अभी मैं बस ये एग्जांपल दे देता हूँ. यू गाइस ट्राई दिस. ठीक है, यू गाइस ट्राई दिस. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे रहेगा? लेट्स से ए इनटू इक्वल्स टू, अगर मैंने 10 कर दिया, एंड नाउ इफ आई आस्क फॉर ए विल बी, अभी कितना था? 20 था, राइट. 20 इंटू 10 विल बी 200. अगर मैं फिर से रन कर दूंगा तो 200 इंटू 10 विल बी हाउ मच? 2000. ठीक है, 2000. सो लाइक दिस यू कैन डू. सो हम क्या कर रहे हैं? उसी ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्ट से माइनस करवा रहे हैं, कुछ मतलब यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा रहे हैं. ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा रहे हैं. ओके, दिस इज लाइक, ये तीनों ही ज्यादा यूज होते हैं वैसे. इंक्रीमेंट प्लस एंड प्लस इक्वल्स टू एंड माइनस इक्वल्स टू ही ज्यादा यूज होते हैं. ठीक है, प्लस इक्वल्स टू एंड माइनस.
plus equals to and minus equals. One question. Hi sir, sorry for disturbance. Completed 12th. I wanted to learn Python completely till if else concept. Can I continue class from tomorrow? Pranava. So yes, Pranava, you can continue your class from today itself. Yeah, tomorrow itself. Because I think tomorrow we will be starting with if and else statement. Okay, so you can continue. Okay, I hope this is clear. And अगर ये असाइनमेंट एक है ना असाइनमेंट ऑपरेट सबको समझ में आया तो टाइप क्लियर इन द कमेंट्स टाइप क्लियर इन द कमेंट्स क्लियर 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 ओके नाउ मूविंग अहेड लेट्स अभी एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे तो बहुत आई थिंक कुछ टॉपिक ही थोड़ा सा डाला है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएट एग्जांपल सम ठीक है बट वी विल बी लर्निंग विद वी विल लर्न ऑल द ऑपरेटर्स जितने भी पाइथन में ऑपरेटर है हम सारे ही पढ़ेंगे आज ठीक है लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं अभी ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं ठीक है सबसे पहला होता है एंड ठीक है उसके बाद होता है और एंड और उसके बाद और क्या होता है उसके बाद होता है नॉट ठीक है उसके बाद होता है नॉट ठीक है एंड और नॉट so these are the logical operators that we will be learning ठीक है these are the logical क्या होता है it makes some logic जैसे एग्जाम्पल देखो ठीक है let's say a equals to 5 okay a equals to 5 and b equals to let's say 11 ठीक है b equals to 11 so if अभी if and else statement हम कल सीखेंगे ठीक है if and else statement हम कल सीखेंगे तो you don't have to worry कि यार ये क्या हो रहा है बट यहाँ पर फोकस करो यहाँ पर focus करो. So what we will be saying if a is equals to 5 and b is equals to 11 print true ठीक है and क्या करेगा what and will do it will check both of the condition these both of the condition if both of the condition is true okay is true then only it will execute this so अभी के लिए हमें क्या दिख रहा है a equals to 5 b equals to 11 ओके तो ये तो सही लग रहा है ठीक है तो इट मीन्स दिस इज ट्रू तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा जैसे ट्रू प्रिंट कर दिया ओके मैं ट्रू प्रिंट कर दिया और सिमिलरली अगर मैं सेम एग्जांपल और के लिए कर दूं नहीं सबसे पहले ट्रू ही देखते हैं और थोड़ी देर के लिए ट्रू देखते हैं ठीक है तो क्या क्या हमने ये दोनों वैल्यू अगर सही है तो इट इज गिविंग अस ट्रू लेट्स से एक वैल्यू गलत लिख देता हूं मैं b is equals to 11 बट एक वैल्यू में गलत लिख देता हूं तो नाउ व्हाट विल हैपन इट विल गिव यू फॉल्स और ये प्रिंट ना होकर ये प्रिंट हो जाना चाहिए ठीक है फॉल्स इसका मतलब है व्हाट दिस मीन इज एंड ऑपरेटर ओके एंड ऑपरेटर it will it will check all the conditions are true okay all the condition are true or not ठीक है ये चेक करें सारी ही अभी देखो ये दो कंडीशन बराबर थी इसलिए ट्रू आ गया इसमें से एक भी गलत रहा तो ये फॉल्स दे देगा दूसरा गलत रहा तो ये एनीवे फॉल्स ही दे देगा ठीक है तो ये दो एनीवे फॉल्स ही दे देगा ठीक है एनीवे फॉल्स ही दे देगा लेकिन दिस इज नॉट अ केस विथ और ठीक है दिस इज नॉट अ केस विथ और क्या देख रहे हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड उसके बाद और देख और में ये चीज नहीं होता अगर ये दोनों में से एक भी चीज ट्रू है इफ एनी वन इज ट्रू और में क्या है एनी वन अभी a इक्वल्स टू 5 इज ट्रू बी ये दिस इज नॉट ट्रू राइट बी इज 11 तभी भी ये ट्रू रिटर्न करेगा ओके तभी भी ये ट्रू रिटर्न करेगा बट अगर एक भी गलत है अगर एक भी सही नहीं है एटलीस्ट देयर शुड बी एटलीस्ट वन तो ये फॉल्स दे देगा ओके
फॉल्स दे देगा। गॉट दिस? कैसे हो रहा है? um, इसको ट्रू के लिए और एंड के लिए ऑल वैल्यूज शुड बी ट्रू, तभी ये आएगा। और के लिए क्या रहेगा? एटलीस्ट वन वैल्यू शुड बी ट्रू। ओके, एटलीस्ट वन वैल्यू शुड बी एटलीस्ट वन वैल्यू शुड बी। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ आएगा। लेट्स से x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 11 और 1000, z इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये आपके वैल्यूज हैं। अभी एंड अभी ट्रू एंड फॉल्स को आंसर देना है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स को आंसर देना है। इफ से a equals to 10 and y equals to this, तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस? इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ऐसा आंसर देना आपको। ठीक है, अच्छा, सबने, दो लोगों ने, तीन लोगों ने तो ट्रू देखा। ट्रू ट्रू ट्रू, श्योर। ओके, so this will be true. Okay, this will be true. Now if I say x equals to 10 and y equals to 0, so you already false with it. 121, इसका आंसर क्या आएगा गाइस? x is 10, y is 100, z is 21, इसका आंसर क्या आएगा? Someone says false, 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 false. Okay, this is false. Okay, now x equals to 10 or y equals to 100 and z equals to 20। इसका आंसर क्या आएगा guys? इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर थोड़ा एंड और हमने मिक्स करा। What will be the answer here? X equals to 10 or y equals to 100 and z equals to 21. Anyone? अच्छा, ये यहाँ पर देख लेना, 10, 100, 21। ठीक, ठीक है, इसका आंसर x, for x and or true। अच्छा, समथिंग ही रोड, यहाँ पर लिख देते हैं x and y true, z is false। so this will be false, ये पकड़ लो false। ठीक है, ये दोनों false पकड़ लो और ये true पकड़ लो, मतलब true and false। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, कुछ ऐसा आंसर आएगा। ट्रू एंड फॉल्स, ऐसे कुछ आंसर आएगा। बाय द वे, ऐसे कुछ होता नहीं। ठीक है, दिस डज नॉट, इट इज नॉट देयर। अभी लेट्स अंडरस्टैंड x इक्वल्स टू 10। ठीक है, लास्ट एग्जांपल, y इक्वल्स टू 101 और z इक्वल्स टू 20। इसका आंसर क्या रहेगा? ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? x equals to 10, y equals to 101 and 20. Someone says true, true, and true. Because in OR operator there should be at least one. At least one. Last example, x equals to 11 or y equals to 101 or z equals to 42.
z equals to 42. False, 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 false. Okay, that was quick. False. Okay, so everyone is clear. Everyone is clear. बढ़िया. So comment out कर देता हूँ मैं. It's done. Okay, so everyone is clear with the uh, logical operator, but हमने not देखा ही नहीं. So not क्या करेगा? It will simply check. ठीक है? It will simply check. जैसे let's say if I say x equals to 5 और ये करेगा let's say if not x, अगर x नहीं है, x है ही नहीं, ठीक है? If not x, print x does not exist, ठीक है? Else x exists, ठीक है? ये बोलेगा if x not exist. अब ये बोल रहा है if not x नहीं है तो ये करो, लेकिन x तो है तो ये आ जाएगा, ठीक है? This will be, so it will just check अगर x है या नहीं है, ठीक है? x है या नहीं है, ओके? कुछ इस तरीके से ही होता है ये, ठीक है? कुछ इस तरीके से ही होता है. You can also say x is not 6. If x is not 6, ये ये 6 नहीं है, राइट? This is not 6. This is 5. X is 5. So that is why इसको अलग एग्जांपल में बोलते हैं. X is not 9. यहाँ पे लिखते हैं X is 5. ठीक है? अभी हम क्या कह रहे हैं? अगर X 9 नहीं है, if X is not 9, then print this या print this. ये चेक करेगा क्या X 9 है? It is not, so that's why this will not get print, this will get print. And it will look like this. X is not 9. अच्छा ये x is not 9, ठीक है? X is not 9. X is not, ऐसे चीज. X is not 9. अगर x 9 कर दूं मैं तो x 9 कर दूं तो फिर क्या ये चेक करा x is not 9? अभी मैं I'm just confusing it, ठीक है? So this will get print. अभी के लिए इतना ही सीखो that it will check क्या ये नहीं है. Is it not it? Is it not? So this was about, अच्छा, we are about time. We are about time. हमें कुछ और भी ऑपरेटर्स देखने थे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सो दैट हम कल इसको पढ़ेंगे. जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है? उसके बाद रहेंगे हमारे कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है? और आई थिंक ये दो और एक कवर कर लेंगे, जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है? आइडेंटिटी ऑपरेटर. तो ये 3 कवर करेंगे एंड मूव टू वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इफ एंड एल्स, ठीक है? इफ एंड, इसके बाद हम सीखेंगे इफ एंड एल्स, ठीक है? तो कल कल ये 2 कंप्लीट करके, ये 3 कंप्लीट करके हम इफ एंड एल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल ये 3 चीजें कंप्लीट करके वी स्टार्ट विद दिस, ओके? सो लेक्चर 5 सेम टाइम में रहेगा कल 9:30 को. कल और परसों मीनिंग फ्राइडे एंड सैटरडे आई हैड सम वर्क, तो इसके वजह से थोड़ा सा डिले हो गया. यूजुअली संडे को हम ऑफ रखते हैं. संडे इज ऑफ डे, ठीक है? संडे इज ऑफ डे, बट फ्राइडे एंड सैटरडे को नहीं हुआ क्लास, इसलिए मैंने आज कवर कर लिया, ठीक है? तो 2 में से 1 डे कवर हो गया, ऐसा बता दिया, ठीक है? डाउट डज नॉट, ट्रू एंड फॉल्स कैन बोथ एग्जिस्ट. डज ट्रू एंड फॉल्स कैन बोथ एग्जिस्ट? नहीं, नहीं करेगा, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पर भी बोला आपको, ये दिस वन ये ऐसे कुछ होता नहीं है, ठीक है? दिस इज अ फॉल्स एग्जाम्पल. ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया. कैसे लिखो? फॉल्स नहीं. these these type of
Assignment does not does not exist. ठीक है, ये बस एग्जाम्पल के लिए दिया। तो अगर मैं इसको इफ एंड एल्स में चलाऊंगा तो मुझे एरर आ जाएगा। ठीक है, कल देखते हैं इसको फिर से। तो संडे को, यस आई वाज सेइंग, संडे को ऑफ रहता है यूजुअली। ठीक है, so I will push this notes probably on a GitHub today or tomorrow. GitHub का link is there in the YouTube अगर practice if you want to practice. तो start practicing the lecture है, मैं I will share this lecture and this इसके description में ही GitHub का link मिल जाएगा कहीं पे। So go and practice. GitHub पे you can practice or otherwise I will also share these notes in the group. ठीक है, alright, if you have any doubts let's discuss. ठीक है, लेट्स डिस्कस डाउट्स। आपके डाउट्स के लिए यू हैव 110 seconds. If you have doubts let me know. Slightest of the doubt, slightest of the doubt, किसी को कोई डाउट है? If you have doubt I have 1 more minute to discuss. If there is no doubt type win in the comments please. If there is no doubt type win in the comments. If there are no doubts type win in the comments. If there are no doubts, no, win, win, win. Okay, we won the day today also. Great. So keep practicing. I will share this. Practice करोगे like these things are simple. अभी से बहुत सभी सब चीज simple लग रही होगी, but मतलब I request still request you to practice. ठीक है, और ठीक है, if anyone wants to join the WhatsApp group हमारा तो you will find this link here. ठीक है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। I will approve the request. And if you want to practice the lectures तो हमने नई सीरीज शुरू कर दी Python की for from start scratch. So this is lecture 4, lecture 3 and in the morning batch ना 8 AM को morning batch होती है। So tomorrow we will be learning pandas part 4. Okay, so keep practicing, stay tuned and see you tomorrow guys. Bye bye.